Hello, dear students. Today we are going to discuss the new chapter of geography, that is our country, India. As the name of the chapter indicates, in this chapter we are going to discuss mainly the India country. Dear student, as you are aware, India is a very significant country in the Asian continent. It is officially known as the रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है. इंडिया इज डीपली लिंक्ड विद द रिवर इंडस फ्रॉम वेयर इट्स प्रेजेंट नेम इज डिराइव, यानी कि जो हमारा इंडिया जो है ये इंडस रिवर से जो है रिलेटेड है, जहां से इसका वर्तमान नाम जो है वो डिराइव किया गया है, निकाला गया है. द पीपल ऑफ द सदर्न एशिया called the river called this Indus river Sindhu, while Persian named it as Hindu. The Greek called it the Indus and the gave the land the name of India. यानी कि जो ग्रीक लोग थे वो इसको इंडस रिवर के नाम से जानते थे और इस प्रकार से हमारे देश का नाम जो है इंडिया हुआ. इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तान, भारत एंड आर्यवर्त. India has a diversity of landforms, the lofty mountains, uneven plateau surface, northern plain, Great Indian Desert, coastal area, island group. These are the main landforms that has been found in the India. So today we are going to discuss about our country, India. Dear student, as you are aware, India is the seventh largest country. If we discuss according to the geographical area, we are on the seventh place. The total geographical area of the India is 32.8 million square kilometer. That constitute the 2.4% of the total world geographical area. So, dear student, today very first we are going to discuss about the India's geographical expansion and the locations of the India. Have a look on this map, dear student. If we have a look on this map, we will find that India has the vast geographical expansion. In the north, in this side, this is the north part of the India. In the north we have the great Himalayan mountain that is found in India. In the east, we found the Bay of Bengal. In the east, we found the Bay of Bengal. In the west, we found the Arabian Sea, and in the south, we found the Indian Ocean. So, in this way, India is bounded with the different geographical feature. Uh, the one more feature of the India is that India is known as the Indian Peninsula. What do you mean by the peninsula? Peninsula, it is a piece of land that is surrounded by the water bodies on three side. जिसकी तीन साइड में आपकी water bodies होती है, उसको जो है पेनिनजुला का नाम दिया जाता है. तो इंडिया जो है एक पेनिनजुला है. कैसे? Because it is also surrounded by the three water bodies. In the east, Bay of Bengal, in the west, Arabian Sea, and in the south, we have the Indian Ocean. If we discuss, as I told you about the geographical area, the total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. That constitute the 2.4% of the total world geographical area. If we discuss about the distance of the India from north to south, India has the 3200 किलोमीटर डिस्टेंस. मीन्स नॉर्थ से लेकर यानी कि आपका जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो टोटल डिस्टेंस है आपका दैट इज दी 3200 किलोमीटर. एग्जैक्ट इज 3214 kilometer. And if we discuss about the east to west distance, that is the 2900 kilometer, and exact is the 2933 kilometer. This is the total distance from the east to west. So north south distance is the 3200 kilometer, and the
East-west distance is the 2900 kilometer. If now this is the matter of the geographical area. In the matter of the population, India lies at the second populous country in the world according to 2011 census. The total population of India according to 2011 census is 1,210,193,422. 1,210,193,422. This is the exact population according to 2011 census that constitute the 17.5% of the total world population. So this is about the a brief introduction about the India. Now we discuss about the location of the India. If we discuss about the location of India, India lie in the northern hemisphere according to latitude and lies in the eastern hemisphere according to longitude. So in this way, we lie in the northeastern hemisphere. Dear student, as you are looking on this image, the latitude and extent of India, as we are lying in the northern hemisphere. So as we are lying in the northern hemisphere, here we found the equator. We are in the northern hemisphere. So from here, in Tamil Nadu, there is a place name is the Kanyakumari. Here our latitudinal extent started and that is 8 degree 4 minute north. ये हमारा जो है 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ आपका है। और ऐसे ही जब हम लास्ट लैटिट्यूडल एक्सटेंट इंडिया तक जाते हैं तो दैट इज इन द जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे हमने दोनों बार जो है नॉर्थ शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये है दैट वी लाई इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है लाई करते हैं। If we discuss about the longitudinal division, we lie in the eastern hemisphere. The longitudinal division starts from the Gujarat here, that is the 68 degree 7 minute east. हमारा जो longitudinal extent है वो गुजरात से शुरू होता है आपका, that is the 68 degree 7 minute east and ended in the Arunachal Pradesh, that is 97 degree 25 minute east. तो इस प्रकार से हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है दैट इज दी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। हियर वी यूज द ईस्टवर्ड because we lie in the eastern hemisphere according to the longitude. So if we just calculated the latitudinal extent and the longitudinal extent, approximately the total latitudinal extent is 30 degree and total longitudinal extent is also 30 degree. In the second chapter about the globe latitude and longitude, I told you that the longitudinal division of India is very vast, that is the 30 degree, and as Earth complete its one rotation in 24 hours, so as the sun rises in the east, so अगर हम ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का टाइम कैलकुलेशन करें, सो देयर इज द डिफरेंस ऑफ द 2 hours. To avoid this difference of the time, we take an Indian standard time, or we take a longitude that is the 82.5 degree east that passes approximately halfway of the India. So as it passes here, so from here we calculated the time, and we in this way we meet the difference of the time. So our watches always show us the same time if we are in the Haryana, Punjab or Gujarat or in Maharashtra, wherever we are, because we always consider our time from the 82.5 degree east. That's why our watches show us the same time. So to meet this time confusion, we consider IST. The value of the IST is the 82.5 degree east. From here, we always do the calculation of the time.
One more thing that you will keep in the mind, according to the geographical expansion, that the Tropic of Capricorn, it almost passes halfway of the India. So the area that lie below the Tropic of Cancer, it experience the tropical type of the climate or torrid type of the climate, and that area that lie above the Tropic of Cancer, that experience the temperate type of the climate, means seasonal type of the climatic condition. Second concept is the इंडियाज नेबर्स. अगर हम इंडियाज नेबर के बारे में बेटा बात करें तो इंडियाज जो नेबर्स हैं आपके, इंडियाज नेबर में आपका जो है कुछ आपके जो एस कंट्रीज हैं जो आपके लैंड मासिस के थ्रू जो है आपके जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो आपके जो हैं वाटर बॉडीज के द्वारा इंडिया से जुड़े हुए हैं. हैव ए लुक ऑन दिस मैप. Here we are going to discuss about the neighboring country of the India. If we have a look in the northwestern direction, in the northwestern direction we have the two countries that are the neighboring countries of the India. These are our the Pakistan and Afghanistan. If we have a look in the north direction, there are three countries that are the neighboring countries of India. These are our China, Nepal and Bhutan. In the east direction, there are two countries that are the neighboring countries of India. These are our Myanmar and Bangladesh. दोबारा से मैं बता रहा हूँ. In northwest we have Pakistan and Afghanistan. In north we have China, Nepal and Bhutan. In east direction we have the Myanmar and the Bangladesh. If we discuss about the coastal areas countries or the water or the ocean countries of the India, these are our two countries. The very first in the south is the Sri Lanka. It is attached with India with the Pak Strait. ये जो आपकी है ये पाक स्ट्रेट के थ्रू जो है आपका जो है इंडिया के साथ कनेक्ट होता है. जो आपका जो एक वर्ड आया बेटा स्ट्रेट, स्ट्रेट जो आपका है, स्ट्रेट में क्या आपका होता है कि जो स्ट्रेट आपकी होती है ये आपकी जो है टू वाटर बॉडीज के साथ जब कोई लैंड मास आपकी कनेक्ट होती है, जैसे कि आपके जो है जब टू वाटर बॉडीज के साथ आपकी जो है एक बड़ी और एक आपकी छोटी वाटर बॉडीज के साथ आपकी जो है जब कोई आपकी लैंड मास कनेक्ट होती है तो उसको हम स्ट्रेट का नाम देते हैं. तो जो आपकी श्रीलंका है और जो इंडिया के साथ ये कनेक्ट होता है ये पाक स्ट्रेट के द्वारा जो है आपका कनेक्ट होता है. और लक्षद्वीप के आगे यहाँ के आसपास आपका जो है मालदीव जो एक देश आपका वो भी इंडिया का जो है ओशनिक कंट्रीज के थ्रू जो है आपका जुड़ा हुआ है. सो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया. ये इंडिया के आपके जो हैं नेबरिंग कंट्रीज में आपके आते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया और द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की. आपके जो है इंडिया के जो है पॉलिटिकल डिवीजन जो है आपकी क्या क्या है आपकी. अगर हम इंडिया की पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें, अकॉर्डिंग टू 2020 द इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ द 28 स्टेट. इंडिया जो है आपका 28 स्टेट से जो है बना हुआ है और 2020 की अकॉर्डिंग आपकी जो है देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट अबाउट द इंडियन स्टेट्स. जो आपके मोस्टली जो आपके स्टेट्स हैं इनका जो आपका डिवीजन किया गया है, मोस्टली स्टेट्स का आपका जो डिवीजन है, दिस डिवीजन हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. और अगर हम इस डिवीजन के अकॉर्डिंग देखें या आपके स्टेट्स पे एक लुक डालें तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया. सो लेट्स have a look on the political division or administrative division of India. The very first is the Himachal Pradesh. The capital of Himachal Pradesh is Simla. Second is our Punjab. Capital of Punjab is Chandigarh. Then Haryana. Haryana also share the common capital, that is the Chandigarh. Then Uttarakhand. The capital of Uttarakhand is Dehradun.
Then UP, the capital of UP is Lucknow. Rajasthan, the capital of Rajasthan is Jaipur. Gujarat, the capital of Gujarat is Gandhinagar. Madhya Pradesh, capital Bhopal. Maharashtra, capital Mumbai. Goa, capital Panji. Karnataka, capital Bengaluru. Kerala, capital Thiruvananthapuram. Tamil Nadu, capital is Chennai. Andhra Pradesh, the capital is Amravati. Telangana, capital is Hyderabad. Odisha, the capital is Bhubaneswar. Chhattisgarh, the capital is Raipur. Madhya Pradesh, the capital is Bhopal. Bihar, the capital is Patna. Jharkhand, the capital is Ranchi. वेस्ट बंगाल द कैपिटल इज कोलकाता. वेस्ट बंगाल का आपका जो रीजन है ये यहाँ से लेकर जो है आपका यहाँ के आसपास तक आपका जाता है. सिक्किम द कैपिटल ऑफ गैंगटॉक. अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल इज ईटानगर. असम द कैपिटल इज दिसपुर. मेघालय द कैपिटल इज शिलोंग. नागालैंड द कैपिटल इज कोहिमा. मणिपुर the capital is Imphal. Mizoram, the capital is Aizawl. And Tripura, the capital is Agartala. These are the 28 states in India. Now have a look on the union territory. There are 8 union territory according to 2020. These union territory are, the very first is the Ladakh. The capital of Ladakh is Leh. Second is our Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, the capital is Srinagar and winter capital is Jammu. Next is our New Delhi and the capital of New Delhi is Delhi. Then our Chandigarh, the capital is Chandigarh. Next is our Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव. पहले ये आपका दमन एंड दीव था, यहाँ पे आपकी दादर एंड नगर हवेली थी. अब इनको कंबाइंड आपका कर दिया गया है और इनकी जो कैपिटल है उसको दमन आपका बना दिया गया है. दोनों आपकी जो ये टेरिटरी है गुजरात के रीजन में आपकी आती है. दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, कैपिटल इज दमन. नेक्स्ट इज अवर, दिस इज अवर फिफ्थ. द वेरी फर्स्ट इज लद्दाख. सेकंड इज जम्मू एंड कश्मीर. Third is New Delhi. Fourth is Chandigarh. Fifth is Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. Sixth is our Pondicherry. The capital is Pondicherry. Seventh is our Andaman and Nicobar Island. The capital is Port Blair. And eighth is our Lakshadweep. The capital is Kavaratti. So this is the administrative division of India. Now have a look on the next concept is physical division of India. If we have a look on the physical division of India, India is mainly divided into the 6 geographical units. These are our, the very first is our, this is our, the Great Mountain Wall, also known as the Himalayan. Second is our, this green portion that you are watching, the northern plain of India. Third is our, the Great Indian Desert. Fourth is our, the Peninsular Plateau. Fifth is our, the coastal plains of India. And sixth is our, the island group of India. So dear student, today we are going to discuss about these physical division of India. Have a look here. Dear student, the very first physical division of India is the Great Mountain Wall, also known as the Himalayan Mountain. Actually Himalayan Mountain from north to south, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक, it is divided into the 3 category. The very first is known as the Great Himalaya. Then in the middle, also known as the Middle Himalaya, also known as the Himachal Himalaya. And in the foothills, this is known as the Outer Himalaya, also known as the Shivalik Himalaya. तो सबसे पहला आपका है Great Himalaya. Great Himalaya also known as Himadri because this is always covered with the snow.
Second is our Himachal Himalaya. Himachal Himalaya is ideal for the tourist places, and most of the tourist places located in the Himachal Himalaya like the Simla, Mansouri, आपका कुल्लू मनाली, देहरादून, सभी जितने भी आपके मोस्टली जो आपके जो हैं टूरिस्ट प्लेसेस हैं, दे लाई इन दी हिमाचल हिमालय। एंड इन दिस लास्ट इज अवर शिवालिक, यानी कि जब आप जो है चंडीगढ़ के आसपास के रीजन में जाते हैं और चंडीगढ़ से जब आपको माउंटेन दिखाई देने शुरू होते हैं, सो दैट इज दी शिवालिक रेंज, उसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। और शिवालिक रेंज धीरे धीरे जो है दूसरी रेंजेस में आपकी मर्ज हो जाती है। सो दिस इज दी ग्रेट हिमालयन माउंटेन। सेकेंड इज अवर द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अगर हम नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया की बात करें तो जो नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, दे लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन, यानी कि हिमालय माउंटेन के साउथ में आपके जो हैं, और अकॉर्ड इन द फुटिल्स ऑफ द शिवालिक, ये आपके जो है नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है ये आपके पाए जाते हैं। मोस्टली इट इज कंसिडर्ड दैट दीज आर द लेवल एंड द फ्लैट लैंड, एंड these northern plain of India, these consist of the three Himalayan mountain river. These are our Indus, Ganga and the Brahmaputra. नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया का ज्यादातर जो पार्ट है, इट ऑल्सो लाइज, सम पार्ट जो है आपका है, इट ऑल्सो लाइज इन दी पाकिस्तान एरिया, क्योंकि जो इंडस है इट ड्रेन इन दी पाकिस्तान, और इसके अतिरिक्त बाकी का जो आपका रीजन है ये आपका इंडिया में आपका पाया जाता है। इंडिया में ज्यादातर जो नदर्न प्लेन आपका पाया जाता है वो गंगा प्लेन के नाम से आपका जाना जाता है। सो दे आर फॉर्म्ड बाय दी थ्री हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र। ये रिवर क्या करती है, माउंटेन से आपका जो है एल्यूवियम लेकर आती है और यहाँ पे आपका जमा कर देती है। इसमें से जो आपकी रिवर जो है, दे ऑल्सो फॉर्म दी डेल्टा, वो डेल्टाज को भी फॉर्म करती है, जैसे कि गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र, दीज रिवर फॉर्म दी डेल्टा हियर। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा एंड इट इज नोन एज दी सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से आपका जाना जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि डेल्टा क्या होता है। एक्चुअली जो डेल्टा होता है, डेल्टा इज दी ट्रायंगुलर लैंड मास, ये आपकी एक ट्रायंगुलर लैंड मास होती है, और ये एक ऐसा, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर। ये जो आपका जो होता है रिवर के माउथ के ऊपर आपका बनता है। एक्चुअली अगर हम रिवर की बात करें तो एवरी रिवर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। द वेरी फर्स्ट इज अपर कोर्स, देन मिडल कोर्स एंड द लोअर कोर्स। अपर कोर्स क्या होता है, जैसे कि रिवर आपकी माउंटेन एरिया से राइज होती है, तो माउंटेन एरिया में इनकी जो वेलोसिटी होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वो आपका अपर एरिया होगा। जब आपकी रिवर माउंटेन एरिया से प्लेन एरिया में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और मीडियोकर स्पीड हो जाती है। तो माउंटेन से जब आपका प्लेन एरिया में जब आपकी रिवर फ्लो करेगी तो हम उसको मिडल कोर्स कहेंगे। एंड व्हेन द रिवर फॉल इन दी सी, दैट इज दी लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में क्या होगा, रिवर की जो स्पीड है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और जितना भी एल्यूवियम वो लेकर आई है वो जो है उससे पहले जो है स्प्रेड कर देती है। तो इसलिए ये जो रीजन होते हैं आपके फर्टाइल रीजन होते हैं। आपकी बहुत सी ऐसी रिवर्स हैं जो डेल्टाज को फॉर्म करती है, जिसमें गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आपकी सबसे फेमस है जो सुंदरबन डेल्टा को फॉर्म करती है। इसके अतिरिक्त इंडिया में आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर, दे ऑल्सो फॉर्म दी डेल्टा। वो भी डेल्टाज को फॉर्म करती है, लेकिन वो हिमालयन रिवर आपकी नहीं। इसके बाद बात हम करते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, and it is the dry, hot and the sandy stretch of the land, and there is very little vegetation due to lack of the moisture or due to lack of the rainfall. Here Aravalli ranges has been found. तो अरावली के आपके जो आगे का जो आपका रीजन है, मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। नेक्स्ट इज अवर this yellowish portion that you are watching here, this is the peninsular India. इसको हम पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जो है आपका जानते हैं। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इसकी जो शेप है अप्रोक्सीमेटली जो है ट्रायंगुलर शेप है, एंड इट इज द अनइवन एरिया, ये समतल एरिया नहीं है आपका, अनइवन एरिया आपका जो है। अगर हम माउंटेन एरिया की बात करें तो इसका जो बॉर्डर डिसाइड करता है दैट इज दी अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है आपका जो है नॉर्थ वेस्टर्न में इसके बॉर्डर को आपका डिसाइड करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें
तो यहाँ पे आपके जो है विंध्या माउंटेन रेंज और सतपुरा माउंटेन रेंज भी पेनिनसुलर इंडिया में आपकी पाई जाती है। ये जो विंध्या और सतपुरा रेंज है, यहाँ से दो रिवर आपकी ओरिजिनेट होती हैं। एक है बेटा आपकी नर्मदा और दूसरी आपकी तापी। नर्मदा और तापी जो रिवर हैं, दे फॉल इन दी अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में आपकी फॉल जो है होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप ईस्ट में देखें, सो इनकी जो बाउंड्री डिसाइड करता है दैट इज द ईस्टर्न घाट, और वेस्ट में इनकी जो बाउंड्री डिसाइड करता है दैट इज दी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है इनको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसमें से 4 रिवर आपकी ओरिजिनेट होती हैं। दीज आर आवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दे फ्लो टुवर्ड द ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न साइड एंड दे फॉर्म डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में ये आपकी डेल्टास को फॉर्म करती है। इसके अतिरिक्त जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपके जो है पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन और कोल। इसके बाद हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन। जो आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, दे आर द सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी एंड ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। सैंडविच क्या होता है कि जब दो चीजों के बीच में कोई चीज आपकी पाई जाती है। तो जैसे ईस्टर्न आपके जो कोस्टल एरियाज हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। अब अगर आप यहाँ पे देखें, जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं आपके, ये जो एरियाज हैं ये आपके नैरोयर हैं, और जो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं ये आपके ब्रॉडर हैं। दूसरी बात, जो आपके वेस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, यानी ये आपकी तीन कैटेगरी में डिवाइड हैं। अगर हम जो है यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर चलें गोवा तक, तो इसको जो है कोंकण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गोवा का जो रीजन है, यहाँ पे इन कोस्टल प्लेन्स को आपका कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। एंड गोवा टू केरला, दीज आर नोन एज दी मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो ईस्टर्न घाट्स हैं, दे आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी। जो नॉर्थ डायरेक्शन में आपका है, यहाँ से उड़ीसा से लेकर आपका यहाँ तक का जो आपका ये रीजन है, इसको हम नर्दर्न सिरकार के नाम से जानते हैं। और ये जो रीजन है आपका, इसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। अब बात आपकी आती है आइलैंड ग्रुप। जो 6 फिजिकल डिवीजन आपकी, वो है आपकी आइलैंड ग्रुप। जो आइलैंड ग्रुप आपके हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। द वेरी फर्स्ट इज दी लक्षद्वीप आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है, दे आर लोकेटेड इन दी अरेबियन सी। वो आपके अरेबियन सी में लोकेटेड हैं। और जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, इट इज कंसीडर दैट दे आर दी कोरल आइलैंड। इनको कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली कोरल क्या होता है, कोरल आर दी स्केलेटन ऑफ द टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पोलिप्स, यानी कि छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जिनको पोलिप्स कहा जाता है, उनके स्केलेटन को जो है कोरल का नाम जो है दिया जाता है। व्हेन दी लिविंग पोलिप्स डाई, जब ये छोटे छोटे एनिमल जो हैं आपके मैरीन एनिमल जो हैं वो मर जाते हैं, देयर स्केलेटन आर लेफ्ट, तो वो अपना स्केलेटन वहां पे छोड़ देते हैं। अदर पोलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन, तो उनके ऊपर दूसरे जो मैरीन जो आपके एनिमल्स हैं वो आपके डेवलप हो जाते हैं, विच ग्रो हाइयर एंड हाइयर। तो इस प्रकार से जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो अपना स्केलेटन छोड़ जाते हैं। इस प्रकार से वो हाइयर एंड हाइयर होते जाते हैं। और इस प्रकार से जो आइलैंड ग्रुप बनते हैं उनको हम कोरल आइलैंड का नाम देते हैं। तो इंडिया में जो है आपका लक्षद्वीप जो है ये कोरल आइलैंड के नाम से आपका जो है जाना जाता है। और इसका एरिया बहुत छोटा है, 32 किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही जो है आपका लक्षद्वीप का है। एंड द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज दी कावारती। इसके बाद आपका आता है अंडमान एंड निकोबार। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अंडमान एंड निकोबार जो हैं, दे आर दी सबमरीन माउंटेन्स। वो जो है समुद्र के अंदर माउंटेन थे, धीरे धीरे उन्होंने राइज करना शुरू किया, और जब वो समुद्र की सतह से ऊपर आ गए तो ऐसे आइलैंड जो बने हैं उनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम दिया गया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। नॉर्थ में ये अंडमान के नाम से जाने जाते हैं, और साउथ में ये आपके जो है निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। और जो अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है दैट इज दी पोर्ट ब्लेयर। ऐसा विश्वास है कि ये जो एनिमल्स हैं ये एक चेन में हैं, स्केटर्ड हैं और अलग अलग हैं, और इनकी संख्या जो है तकरीबन 550 के आसपास है। 2004 में यहाँ पे आपकी जो है सुनामी आ गई थी, तो इसमें जो आपका अंडमान एंड निकोबार जो है ये आपका समुद्र के अंदर जो है सबमर्ज्ड हो गया था।
So dear student, this is our chapter. In this chapter, we discuss about the geographical expansion of India, neighboring countries of India, political or administrative division of India, and the physical division of India. Dear student, thank you. Have a nice day. God bless you all. This is enough for today.